what is the advantages and disadvantages of the purchasing an existing business. The second thing is like, what is franchise? What is the meaning of that and how it is utilized in the Indian market? So we are going to understand about these things. And secondly, what will be our today's success story? It's about the Pepperfry. Okay, what is Pepperfry is, let me tell you, they are dealing with the online furniture. And when this story was started, we are going to understand or discuss about it, right? So let's start with our today's class, and that is, let's start with what anyone can tell me that how we are able to negotiate the price when we are dealing with the existing business, when we are purchasing an existing business. Any one of you can tell me that how we are able to negotiate the price and what will be the suitable price? Anyone? What factors matters when we are basically negotiating the price? Any one of you? Raise your hand and turn on your camera, everyone. Every student, turn on your camera and raise your hand. Yes, Muskan. Yes, Muskan, tell me. मैम नेगोशिएशन करने के लिए जो सेलर है उसका देख लेना होगा कि वो किस पोजीशन में है। अगर उसको बहुत जरूरी है ये ना और ये बेचना, तब उसको ज्यादा नेगोशिएट कर पाएंगे। बट अगर उसका मार्केट में डिमांड बहुत अच्छा और वो अपने किसी मजबूरी के कारण बेचना चाह रहा है, उसका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, तब वो उसका प्राइस ज्यादा रखेगा। नेक्स्ट मैम, मार्केट में पोजीशन क्या है, और इन्फ्लेशन रेट क्या है, डिफ्लेशन रेट क्या चल रहा है। वेरी गुड। और मैम कंपटीशन अगर हाई है तो प्राइस रहेगा। ज्यादा लोग उसको परचेज करने के लिए है तो उसका प्राइस हाई रहेगा। अगर बहुत कम लोग उसको लेना चाह रहे, ज्यादा उसका पब्लिसिटी नहीं हुआ, ज्यादा अच्छा गुडविल नहीं है, तो उसका प्राइस लो रहेगा। बिल्कुल। एंड द वे हाउ यू आर डीलिंग with the owner, right? The negotiation power which you have, that matters. And what I said earlier, कि गर्ल्स का जो negotiation power होता है प्रोडक्ट को लेने के लिए, that is very high. True? सही बात है ना? Yes, सही बात है या नहीं है ना? Exactly. So it's, don't take it personally, it's a normal term. So what is the advantages and disadvantages if we are purchasing an existing business? So see, effort, dedication, everything is invested by some other person. What we are doing, we are capitalizing, we are paying the amount for that. But the question is like, in what condition the seller is. Like if the seller is ill, if there is a bad debt और बैंक लोन बहुत ज्यादा है उसके सर पे और उसको जरूरी है अपने बिजनेस को सेल करना, अदरवाइज he maybe go to jail or any legal action can be taken against him. So in that point of view, we are able to negotiate as what we want. Like we can negotiate at what rate. जैसे कि वो 50 lakh में fee selling, we are able to negotiate it to 20 or 25 lakh. What is the current position of that particular company? That also matters. Like अगर कंपनी जो है वो रनिंग स्टेज में है, प्रॉफिट में है, पैसे अच्छे खासे आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप इस तरीके के बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, सो गुडविल अगर हाई है तो बिजनेस का प्राइस भी हाई होगा। क्लियर है? उसके अलावा आपका निगोशिएशन पावर एंड आप एक्सपीरियंस एंड योर हाउ मच यूर एक्सपर्टीज इन दैट एरिया, दैट मैटर्स, राइट? एंड व्हाट वैल्यूएशन एबल टू डू, मतलब आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ये बिजनेस जो है वो कितना आगे जाएगा। So that these things matter, and according to these things we are able to negotiate the price of an existing business. ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पे, और दैट इज अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, so let me tell you about the advantages. That much lower risk is associated with these kind of business. The business is in running stage. The business is basically earning profit. They are giving the profit to you, right? So what is there in, if we are starting any business from scratch, ठीक है, scratch is something where we are starting everything from the ideas, मतलब एकदम initial stage से हम ideas के साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, either from the problems what we saw, अपने surrounding में जब हम कोई problem देखते हैं,
या जब हम पैशनेट होते हैं किसी जैसे कुछ हॉबीज होती है हमारी, लाइक वी वांट टू प्ले बैडमिंटन एंड ऑल. So in that situation, we want to become an entrepreneur because of for this, कि like we are able to fulfill our passion. True. So जब हम कुछ problems को देखते हैं and we just want to start our business, हम अपना business शुरू करना चाहते हैं, हम social welfare के लिए कई बार business शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा रिस्क होता है, बिकॉज आपको श्योरिटी नहीं है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं कितने लोग खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को. ठीक है. How many of you all are watching that new serial which came in the summer, that is Shark Tank? कितने लोग देखते हो? How many of you are watching that serial? Vineet. Good. So yes, majority of the people are watching that Shark Tank. So basically you all are able to gain the information from that particular serial because they are providing you the knowledge. ठीक है. What kind of innovative things वो अपना लेकर आते हैं सामने, and they are getting the investment over that particular business, right? And their brand is also promoted because we all are able to see those type of businesses which is available in our country. But the question is that how much beneficial that company is for us. ठीक है. जब भी हम कोई नया बिजनेस बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, हम टाइम, एफर्ट, हार्ड वर्क सब कुछ करते हैं, बट श्योरिटी फिर भी नहीं होता है कि वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, क्योंकि मार्केट हमारे लिए बिल्कुल नया है, कस्टमर्स का अडॉप्शन रेट, कॉम्पिटिटर्स क्या है, सब चीजों को एनालाइज करना एट अ सिंगल टाइम समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट. बट व्हेन वी आर परचेजिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस वी आर वेरी श्योर कि एटलीस्ट नो डाउट इट इज नॉट श्योरिटी कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक चला सकते हो, लेकिन in present we are able to see the profit. True. So comparatively when we are starting a new business by scratch, it is better that we are basically buying an existing business. In the case of the risk के केस में मैं ये बात बोल रही हूँ. क्लियर हो गया पहला पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. सेकेंड थिंग इज दिस जनरेट कैश फ्लो फ्रॉम डे वन. अब जैसे मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, लाइक आई एम सेलिंग दिस बॉटल, प्लास्टिक बॉटल फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है पर्टिकुलर प्लास्टिक बॉटल का. आप लोग को दिख रहा है ना ये प्लास्टिक बॉटल? बिकॉज वो व्हाइट स्क्रीन में ये बिल्कुल गायब हो जा रहा है. दिख रहा है ये? दिख रहा है मैम. यस मैम. तो अब ये प्लास्टिक बॉटल जो है ये मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको सेल करना है भाई. ठीक है. अब मुझे नहीं पता है कि मेरे पास कितने सप्लायर्स आएंगे, मतलब कितने सेलर्स आएंगे जिनको मैं ये प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ. अगर मैं डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रही हूँ, इट मीन्स दैट इज मॉडल इज नोन एज B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर. या तो मैं इसको डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करूंगी ये बॉटल को, बट द पीपल आर नॉट गोइंग टू परचेज द प्लेन बॉटल until and unless it is of the qualitative thing. अगर नहीं है तो जैसे सेलो का बॉटल आप खरीदते हो फ्रिज में पानी रखने के लिए, आप पॉलपेट का बॉटल खरीदते हो फ्रिज में पानी रखने के लिए, सही बात है ना? तो हमारे लिए बॉटल का यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा फ्रिज में रखने के लिए होता है, सही बात है. एंड इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग इट एंड आई एम सेलिंग इट टू द कंज्यूमर, दैट मॉडल इज B2C. ठीक है. बिजनेस टू कस्टमर. If I'm selling this to the business person, like अब ये जो बॉटल है इसका कोई ब्रांड नहीं है, I'm providing the plain transparent bottle. ठीक है. अब या तो इसमें वो ऊपर लोगो लगा करके अपना लेबलिंग करके बेचे, इसमें प्रोडक्ट भर के बेचे, वो वो होगा B2B, यानी कि मैं बिजनेस के साथ डील कर रही हूँ, बिजनेस के साथ डील कर रहा है. ठीक है. लेकिन मुझे क्या गारंटी है कि जब मैं बिल्कुल नया बिजनेस शुरू करूंगी तो मेरे पास फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट मिलेगा? मुझे कोई गारंटी है इस चीज की क्या? मे बी 1 महीने तक मेरा कोई भी कंसाइनमेंट मुझे कोई मिले ही ना. ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 मंथ तक आई डोंट हैव एनी कंसाइनमेंट. इट माइट बी पॉसिबल दैट इट इज गोइंग टू फॉर 2 मंथ, 2 महीने तक मेरे पास कोई कंसाइनमेंट नहीं है. If I don't have consignment and I have expenses, मेरे पास एक्सपेंस है, क्योंकि मुझे हर महीने अपने लोगों को जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मुझे सैलरी देना है, उनको मुझे पैसे देने हैं, एंड उसके अलावा मुझे अपनी प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए मुझे पैसे लगाने हैं. सही बात है. तो यहाँ पर आपके साथ सबसे अच्छा जो बेनिफिट है आपके लिए, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट डे. पहले दिन से ही आपके पास पैसे आते रहेंगे, क्योंकि वो बिजनेस चल रहा है और वो प्रॉफिट दे रहा है. तो जब इसमें सिर्फ ओनरशिप जो है वो चेंज हुआ है, तो आपका जो भी सिस्टम है वो तो प्रॉपर्ली वर्क कर ही रहा है, तो आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं होगी. स्टार्टिंग में ही आपके पास प्रॉफिट आना
शुरू हो जाएगा, यानी कैश इनफ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? सही बात है? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट वन इज proven business constant, the processes। ठीक है। See, if anyone is starting the business, जैसे मैंने ये बॉटल वाली बिजनेस की बात की, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने जब ये बॉटल का बिजनेस स्टार्ट किया मैंने बहुत ज्यादा क्या किया, मतलब हार्ड वर्किंग की जरूरत पड़ती है, प्रमोशन की, नेटवर्किंग जो मैंने बताया आपको, इतने सारा काम होता है जो मैं पहले ही कर चुकी हूँ जब मैंने अपने बिजनेस को खड़ा किया, स्टार्ट किया। ठीक है। अब मेरे ये सारे के सारे जो भी चीज एफर्ट्स मैंने किया, ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किया, मैंने पहले देखा कि भाई इस तरीके से बिजनेस चलेगा कि नहीं, फिर इस तरीके से चलेगा कि नहीं, इस तरीके से चलेगा कि नहीं। अब द होल एक्सपेरिमेंट गिव मी अ रिजल्ट, द पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट क्या मिला कि मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा। अब दैट पॉजिटिव रिजल्ट आई एम गोइंग टू सेल इट टू द अनदर पर्सन। ठीक है। तो जितने भी बिजनेस के प्रोसेस और कॉन्सेप्ट होंगे वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड होंगे, वो ऑलरेडी ट्रायड होंगे, वो ऑलरेडी प्रूव्ड होंगे। तो वी डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रा लेग वर्क इन दिस। क्लियर? सही बात है? यस मैम। समझ में आया? चलिए, टर्न ऑन योर कैमरा। मुझे बच्चे नहीं दिख रहे हैं क्लास में, मतलब आई मीन टू से मुझे सब बच्चे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। टर्न ऑन योर कैमरा। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। यस, सारे लोग कैमरा टर्न ऑन करके बैठो। चलिए, अब नेक्स्ट में क्या आएगा? Establish customer base, providing referrals and references. अब here what will be happen? अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग तुम लोग को पता है कि जो मैगी है that came in India around 1980s? तुम लोग को मैंने एक बार मैगी का केस स्टडी भी कराया था, याद है? मैगी खाते हो ना? पसंद Yes, तो ma'am. होगा ही सबको। यस मैम। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल मैम। हाँ, सो यहाँ पर मैं इसी के बारे में बता रही हूँ, यहाँ से मैं लिंक करूंगी इस पॉइंट को। देखो, मैगी जब आया तो दैट वाज मतलब दैट वाज टोटली एक्सेप्टेड बाय द इंडियन कंज्यूमर्स। आज भी लोग को मैगी बहुत पसंद है, क्विक फूड है और पेट भी भर जाता है। लाइक आई नो दैट एज अ इंडियन हमारे लिए वो हमेशा स्नैक्स ही रहेगा, बट यूथ जो है उसको रात में खाने के टाइम पे भी खा लेते हैं, ऐसा है। चलो, वी आर द एडजस्टेबल पीपल, ट्रू, बट दैट बेसिकली स्नैक्स। So once Maggi is proved, Maggi is successful, Maggi का मार्केट एकदम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। Now what Nestle did, you know that Nestle is a parent company of Maggi? Maggi का parent Yes, company ma'am. Nestle है ना? अब Nestle को ये चीज समझ आ कि ये जो Maggi का ब्रांड है, it is working successfully, ठीक है, प्रॉफिट भी है इसमें। और एक इंसिडेंट हुआ था, that was happened in 2014, that लेड वाला जो FSSAI वाला। तो जस्ट लीव इट, बट स्टिल वी आर एबल टू सी दैट द मैगी इज इन द लीडिंग नूडल्स में अभी भी वो है। सही बात है? अब मैगी को जब पता लग गया कि मतलब नेस्ले को पता लग गया कि जो मैगी ब्रांड है मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, नाउ व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड ब्रांड एक्सटेंशन। तुम लोग को मैंने ये पढ़ाया है सेकेंड ईयर में, याद होगा, ब्रांड एक्सटेंशन। Like now we are able to see that Maggi pasta is available, Maggi masala is available, Maggi sauce is available, Maggi soup is available. ठीक है? तो ये क्यों हुआ? Why this happened? Because the people who are already purchasing Maggi, they have a trust and reliability. अगर आप उनको मैगी की जगह आप पास्ता देखो, पास्ता के लिए भी उनको एक्स्ट्रा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके पास जो ऑलरेडी मैगी है वो इनफ है उन सब चीज का ब्रांडिंग करने के लिए। सही बात है? तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है, कंपनी का कस्टमर ऑलरेडी बना हुआ है, कस्टमर बेस ऑलरेडी है। तो अगर आप कोई नए प्रोडक्ट के साथ भी डील करना चाहोगे, इफ यू विल स्टार्ट डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट when you purchase an existing business, you don't need to look for the customers, you don't need to try to make customer base. Yes, no doubt you want to increase the customer, आप अपने कस्टमर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, but you don't need कि आप कस्टमर बेस रेडी करें, क्योंकि आपका कस्टमर बेस ऑलरेडी बना बनाया है। बट यू जस्ट नीड टू मेक द थिंग्स अबव दैट बेस, मतलब उस बेस के ऊपर आपको और लेयर्स बस बनाना है, बट द बेस इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जब बिल्डिंग बनता है और नीचे बेस उसका जब पिलर स्ट्रॉन्ग होता है, तो बिल्डिंग को आप कितने भी फ्लोर तक ले जाते हैं दिक्कत नहीं होती है ना। सो द सेम सिचुएशन इज हियर कि आपका कस्टमर बेस रेडी है,
आपके पास रेफरल्स के लिए, रिकमेंडेशन के लिए लोग हैं, बस आपको क्या करना है कि जो भी नया प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो या फिर कोई नई सर्विस के साथ डील कर रहे हो, जो उसका रेपुटेशन और गुडविल रहा है उसके साथ वो मैच करे। यानी कि अगर वो कंपनी पहले से बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है मार्केट में, तो आप भी उस चीज को मेंटेन कीजिए ताकि कस्टमर का लॉयल्टी आपकी कंपनी के साथ बना रहे। तो यहाँ पर कस्टमर बेस के लिए ना, यू डोंट नीड टू डू लेग वर्क, बहुत ज्यादा काम मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बना बनाया बेस आपके पास रेडी है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट है एस्टैब्लिश सप्लायर। अच्छा, एक यहाँ पर वर्ड था रेफरल्स और रेफरेंसेस। आई गेस ये पॉइंट आप लोग को पता होगा क्या होता है रेफरल और रेफरेंसेस। रेफरल एंड रेफरेंसेस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास? रेफरल एंड रेफरेंसेस पता है ना क्या होता है? मुस्कान बताओ। मैम रेफरल कोई कंपनी ऑफर करता है जिससे थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है, और रेफरेंस तो हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को देते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा है, आप भी खरीदो। हाँ, see, referral code is something like you are referring Muskan or Akanksha. ठीक है? So that is referral code you are using. Reference, you are giving the reference of Muskan and Akanksha to the company. ठीक है? So references is related with recommendation or it is basically done by the consumers a lot. Consumers क्या करते हैं? उनको खुद प्रोडक्ट पसंद आता है, they are going to tell everyone about that. And the people are curious. खुद से लोग भी पूछते रहिए आपने कहाँ से खरीदा, वो उस पर्टिकुलर कंपनी से खरीदा। True. So this is going to be happen if you have already a customer, and that is possible when you are purchasing an existing business. Now next one is established supplier. Established supplier. Okay, what is the meaning of established supplier? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपके जो सप्लायर्स हैं, यानी आप जिनसे भी गुड्स को परचेज कर रहे हो, वो आपके ऑलरेडी अवेलेबल है स्टोर में, मतलब आपके पास, सॉरी, आपके बिजनेस में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो यू डोंट नीड टू लुक फॉर द बेटर सप्लायर्स, यू डोंट नीड टू लुक फॉर द एडिशनल डिस्काउंट एंड ऑल, बट दैट सप्लायर्स जो है वो ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ काफी सालों से अगर एसोसिएटेड है, so they are in both type of relationship, formal and informal. So in that situation you don't need to go for the additional suppliers and all. ठीक है? If they are providing you better product, you are going to continue with that. So looking for the supplier, that is one of the hectic things, because sometimes you will get those people, those suppliers who are going to deliver the damaged product, who is going to provide you the underway raw material. So there are multiple problems. So if you have a trustable supplier already with the company, you don't need to go for it. Clear? समझ में आया? Everyone? Yes ma'am. Okay. Next point is trained employee in the place. See, trained employee in the place, it matters. Like ultimately, you are not only one person. आप सिर्फ कंपनी में तो नहीं होंगे, आप multiple people around you, because that is already an existing business. So in that situation, you have already trained people. You have a proper human resource available in your store. You don't need to give them training from the first class. ठीक है? पहली कक्षा की तरह आपको उनको कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, ABCD से उनको आपको शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। But it doesn't mean that you cannot provide them training. Yes, you can provide them training, but only for brush up and only for enhancing their knowledge. उनके नॉलेज को enhance करने के लिए, उनके नॉलेज को brush up करने के लिए you can give them training. But आपको हर एक काम उनको सिखाने की जरूरत है. You have your accountant, you have your marketing managers, you have your human resource managers. तो यहाँ पर आपके पास लोगों की कोई दिक्कत और कमी नहीं है, ट्रेन्ड एम्प्लॉइज है, और वो आपको बिजनेस के बारे में बेटर बता भी सकते हैं कि किस तरीके से बिजनेस चलता आया है। ठीक है? सो यू डोंट नीड टू स्टार्ट विथ वेरी इनिशियल फेज। ठीक है? तो आपको अच्छे खासे ट्रेन्ड एम्प्लॉइज मिलेंगे, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस पीपल मिलेंगे। सो द सक्सेस, the credibility which is provided under this existing business, that is very high.
If you are taking loan, you are able to provide the loan back, the amount back very quickly. अगर आपने इस particular business को purchase करने के लिए 50 लाख का loan बैंक से लिया भी होगा, so you are able to provide that loan very soon. ठीक है? So credibility is very high, and you have the option of the seller. जो जिन्होंने भी आपको बिजनेस सेल किया है, अगर वो पर्सन है तो यू कैन एबल टू टेक द असिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन एज वेल. वो आपको असिस्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि वो काफी दिनों से उस बिजनेस को जान रहे हैं, है ना, बिकॉज उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, चलाया है. So definitely that person is experienced person, so you will get the assistance of that person as well. ठीक है? he is going to tell you about the strategies. वो आपको strategies में भी help करेंगे. So यहाँ पर advantages clear हो गया. What are the various advantages when we are purchasing an existing business? Clear? Everyone? Everyone, this point is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay, okay. Let's start with the disadvantages. So what can be the disadvantages? क्या disadvantages हो सकता है? तो पहली चीज ये है कि यहाँ पर आपका जो बिजनेस का सक्सेस है, that is totally मतलब there is often a direct correlation between the success of business and the owner. So your business is often reliant on the flair and personality of the owner. So one disadvantage is of इसका तो कुछ बहुत सारे disadvantages भी है. पहला तो there is a rigidness in the business. जो भी business आप खरीद रहे हैं, आप उसको तुरंत से flexibility के मोड में नहीं ला सकते. ठीक है? जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो तुरंत से आपके आइडियाज पे काम करना भी शुरू करें, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो एक हैबिट में ऑलरेडी सेट हो. धीरे धीरे यू जस्ट नीड टू चेंज. ठीक है? देयर इज अ रिजिडनेस, एंड इफ यू वांट टू चेंज द पैटर्न ऑफ द वर्किंग, द पीपल आर नॉट गोइंग टू से यस फॉर दैट. ठीक है? नेक्स्ट वन इज सम टाइम बायर जो है वो कई बार बहुत ज्यादा हाई पैसा पे कर देता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और आगे चल के पता लगता है कि बिजनेस इतना प्राइस का वैल्यू था ही नहीं इस बिजनेस का. So there is a risk related with the financial thing, that if you will pay very higher amount and later on you understand that this business is not at all profitable. ठीक है? Yes, she is on waiting, but she came at 4:17 or 18. चलिए. Next one is like sometime when we are purchasing the business, all the machineries, all the fixed asset machineries, whatever the company is using, that is outdated. Just imagine if हम अगर कोई बिजनेस खरीद रहे हैं और वहां पर आज भी लोग लैपटॉप और कंप्यूटर्स की जगह दे आर यूजिंग द टाइपराइटर्स, डू यू थिंक दैट बिजनेस इज रिलायबल? डू यू थिंक दैट दिस बिजनेस इज गोइंग टू वर्क फॉर द लॉन्ग टाइम? Obviously no. Why? Because the typewriter is thing which is outdated nowadays. True? So in short, we can say that the technology के हिसाब से हमें अपने बिजनेस को अगर हम रन कर रहे हैं today, that this is 21st century. So we cannot always be on the conventional method. हम conventional तरीकों से काम नहीं कर सकते. ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि outdated machineries वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है when you are purchasing an existing business. Rigidness in the workers and rigidness in the business organizational structure, ये हो सकता है. हाई पेमेंट आप कर सकते हो बिजनेस का जिसका वैल्यू ना हो ज्यादा. ठीक है? देयर कैन बी चांसेस ऑफ द लीगल फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है. उसके अलावा आपके पास लोअर प्रॉफिट भी आ सकता है. आपने जो इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है. तो देयर इज सो मेनी थिंग्स विच कैन बी अनसर्टेन हियर. बहुत सारी चीजें अनसर्टेन भी है, लेकिन दीज थिंग्स कैन बी पॉसिबल. सही बात है? क्लियर है सबको? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? एवरीवन? Yes, ma'am. ओके. चलिए. So let's move toward the next one. Let's move toward the next one, that is about today's success story, Pepperfry. Okay, before out that, how many of you heard about this name? कितने लोगों ने इसका नाम सुना? Raise your hand. How many of you already heard the name of this? कितने लोगों ने इसका नाम सुना है Pepperfry का? No one. किसी ने भी नहीं सुना? न्यूली लॉन्च है मैम, तो इतना आइडिया नहीं है. Okay. Anyone else who tell me that yes, we heard about this name Pepperfry? अच्छा, how many of you love to
डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन योर हाउस, और ये अपने घर में डिजाइनिंग करना किसको पसंद है, घर में इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह करना, कर्टन्स लगाना और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को लगाना. यस, आकांक्षा, शीला. So I guess this name is not new for you. True? नो मैम, नहीं सुना मैम. नहीं सुना है. तो चलिए मैं आपको इसकी कहानी बताती हूँ. तो पेपर फ्राई, मुझे बताना पड़ेगा पेपर फ्राई को कि that students are not aware from this company. So why students are not aware? Because Pepper Fry is not a restaurant. Pepper Fry is not selling books. Pepper Fry is not a club. So that is one of the thing, and they are not selling the cosmetics and the trendy clothes. So that's why I guess most of you didn't heard about its name. So देखो, कभी भी अगर आप लोग में से कितने लोग फर्नीचर खरीदने गए अपने पेरेंट्स के साथ, कितने लोग गए हैं फर्नीचर खरीदने, कितने लोग गए? मुस्कान. What about the others? आकांक्षा. And what about the others? बस 2 लोग गए. अच्छा, मतलब समझ रही मैं कि तुम लोग कुछ भी हेल्प नहीं करते होगे अपने पेरेंट्स का. ठीक है. तो चलिए मैं बताती हूँ. So purchasing a furniture, it's not an easy task, it's a tiring task. पहले तो हमारे मन में एक परसेप्शन होता है कि भाई इस तरीके का सोफा परचेज कर रहे हैं तो दैट शुड बी comfortable, durable, economical. So we have multiple perception, we have some expectations from the product. ठीक है. फिर एक शोरूम में गए, नहीं पसंद आया, फिर विल गो टू द नेक्स्ट शोरूम, विल गो टू द थर्ड वन. लाइक दिस वी आर कंटिन्यूइंग बेसिकली विजिटिंग द पर्टिकुलर स्टोर. और उसके बाद भी वी हैव नो गारंटी दैट whatever perception or expectation we have in our mind, we are able to get it or not. So later on फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कस्टमाइजेशन की तरफ मूव कर जाते हैं कि चलो भाई हमें यहाँ सोफा तो पसंद नहीं आया, अब किसी लोकल कारपेंटर को पूछते हैं कि भाई इस तरीके से सोफा बना सकते हो या नहीं. फिर हम कस्टमाइजेशन की तरफ मूव कर जाएंगे. इफ यू एवर विजिट टू नाला रोड और दानापुर एरिया, दे आर बेसिकली टोटली, वहां पर आप देख सकते हो कि फर्नीचर के लोकल स्टोर्स अवेलेबल. यस मैम. है ना. तो हम लोग देख सकते हैं कि नाला रोड दैट इज नियर बाय राजेंद्र नगर एंड दानापुर, दोनों कोने कोने. तो वो लोग क्या करते हैं, लोकल बेसिकली आपके फर्नीचर को प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं फर्नीचर्स को. तो वहाँ कस्टमाइजेशन भी है, यू कैन टेल अबाउट इट. यस, बट बहुत एक्सट्रीम अगर आप डिजाइनिंग कराओगे तो कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, बट अदरवाइज दे आर गोइंग टू गिव यू वॉट एवर यू आर बेसिकली से. बट इट इज गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम, मे बी 1 month, 2 months, कई बार 20-25 दिन भी चले जाते हैं. एंड यू आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन 2 people, कारपेंटर एंड द सेकेंड वन इज शॉपकीपर. और कई बार आप, कुछ लोग तो अपने घर पे ही बोलते हैं कि घर पे ही सोफा बनवा लेते हैं, तो वो घर पे वो बनवाने के लिए वो कारपेंटर्स को लेकर आते हैं. तो देयर आर मल्टीपल रीजंस कि फिर भी ये बहुत आसान काम नहीं है. अगर हम एक कस्टमर हैं तो जरूरी नहीं है कि हम अगर फर्नीचर खुद नहीं बना रहे हैं लेकिन बनवा भी रहे हैं, तो दैट इज समथिंग विच इज very difficult, right? So Pepper Fry understand about this fact, like purchasing furniture and उसको घर तक deliver करा, asking about कि furniture बना कि नहीं, फिर phone करना, visit करना multiple times store. So Pepper Fry understand about these problems, what the customers are facing when they are purchasing the furniture. So they basically started selling furniture via online mode. So Pepper Fry is totally a e-commerce platform and they are dealing with furniture. किसके साथ डील करते हैं ये? फर्नीचर के साथ. फर्नीचर में they have a multiple options, obviously bed, dining table, sofa, TV stands, multiple things, multiple props जो है वो भी अवेलेबल है. और उसके साथ साथ they are also helping you for your home decoration. कहाँ पर आपको उसको लगवाना है, अगर कोई सोफा है तो आपको उसको कहाँ रखवाना है, असेंबलिंग, इंस्टॉलिंग, आपके घर की डिजाइनिंग, वो सब कुछ में आपकी हेल्प करेंगे. सो दे आर नॉट ओनली सेलिंग द फर्नीचर बट दे आर मेकिंग योर हाउस एंड कन्वर्ट इट इनटू द होम. आपके मकान को घर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? पेपर फ्राई. So how the story started? Let me tell you. There are some companies highlight what it is. Headquarter है मुंबई, पेपर फ्राई का हेडक्वार्टर है मुंबई में. फाउंडर, देयर आर 2 founders. The first one is Ambrish Murthy and second one is Ashish Shah. ठीक है. Sector is e-commerce and it is founded in 2011.
फंडिंग अगर बात करें तो इट इज अराउंड $280.24 मिलियन 2021 में, और इसका वैल्यूएशन कितना है? इट्स वैल्यूएशन इज अराउंड $700 मिलियन. Okay, so I guess this point is clear to all of you. And what is the revenue? If in the 2020 the revenue was around 260.61 crore. What is the parent organization? So its parent organization is Train Sutra Platform Service Private Limited. So Pepperfry जो है, it was started in 2011 by two person, Ambrish Murthy and the Ashish Shah. और इन्होंने जब स्टार्ट किया था ना, they didn't started with the furniture. उन्होंने फर्नीचर सेलिंग किया था. Started with selling the lifestyle and fashion items. तो ये Pepperfry के थ्रू ना लाइफस्टाइल और फैशन आइटम सेल कर रहे थे. और स्टार्टिंग में ना बहुत ज्यादा इनको प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि उस समय हाल फिलहाल में यहाँ फ्लिपकार्ट भी आया था. तो इनका ना स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा बेनिफिट हुआ इनिशियल स्टेज में. और उस समय तक ना जब ये आए थे Pepperfry, तो उस समय तक इंडियन मार्केट को हिट भी नहीं किया था आपके अमेजोन ने, और फ्लिपकार्ट न्यू ही आया था. लेकिन आगे चल करके दे काम करना, वो प्रॉफिट मिलना बंद हो गया धीरे धीरे. ठीक है. सो फिर Pepperfry को समझ आया कि वी जस्ट नीड टू सेल दोज आइटम्स व्हिच इज नॉट इवन अवेलेबल बाय फ्लिपकार्ट एंड द अदर टाइप ऑफ ऑनलाइन सेक्टर. सो दे स्टार्टेड सेलिंग फर्नीचर एंड होम फर्निशिंग प्रोडक्ट. ठीक है. एंड दैट विच प्रूव्ड अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल, और वो एकदम आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट देना भी उसने शुरू कर दिया. अभी जो ब्रांड Pepperfry है, दे आर स्पेशलाइज्ड टू डील विद द होम डेकोरेशन सेगमेंट. अपने होम डेकोर के लिए वो फेमस है, फर्निशिंग है, लाइटनिंग के लिए, किचन अप्लायंसेस के लिए, किचन कैसे सेट करना है, हाउस कीपिंग, बाथिंग इक्विपमेंट, डाइनिंग एंड सो ऑन. सो व्हाट आई टोल्ड यू ना, दैट दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर converting house into home, that how the people will live, the convenience, the comfortability they are thinking about. ठीक है. So इसका जो अभी हम बात करें तो they have the proper products and delivery mechanism. इनका खुद का डिलीवरी मैकेनिज्म है. और अभी आप देख सकते हो कि Pepperfry जो है, they have अराउंड 7 मिलियन प्लस विजिट हर महीने होता है इस वेबसाइट पे, और लगभग 4.5 मिलियन इनके पास रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, और इनके पास बहुत सारे 1000 सेलर्स भी हैं. ठीक है. Pepperfry जो है, इसने अपने कैटेगरी को 2013 में बदला था. मतलब 2011 में they were started with the lifestyle category, then they changed into the furnishing and furniture category. ठीक है. एंड हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, और इनके पास ना अपना Pepperfry स्टूडियो भी है. तुम लोग में से कितने लोगों ने बोरिंग रोड Pepperfry का स्टूडियो देखा है? किसी ने देखा है? तो Pepperfry जो है ना, दे आर टोटली बेस्ड ऑन ई कॉमर्स, मतलब दे आर सेलिंग ऑनलाइन, बट दे हैव सम स्टूडियोज. लाइक जैसे आप लोगों ने एशियन पेंट का स्टूडियो देखा होगा, जैसे आपको अपने घर को पेंट करवाना है, कलर कराना है, तो दे हैव अ फुल, आप अपने घर का अगर उनको पिक्चर भी लेकर दे दोगे ना, तो दे विल टेल यू दैट व्हिच कलर कॉम्बिनेशन इज सूटेबल फॉर यू. यस मैम. हाँ, है ना, बिल्कुल. So the same thing is here in the Pepperfry studios. Like if you're not comfortable by purchasing products via online, so what you can do, you can visit the studio. You are able to see that how setup is done, what kind of product they are selling. Once you are 100% आप satisfy हो जाएंगे, then you can place the order, right? So they have so many studios, and that is around 18 plus Indian cities में है, और लगभग 60 से ज्यादा है. In Patna there are 2-3 studios even. I can tell you that one is in Kankarwag, right, and one is in, I guess, Boring Road. I saw, but it is working or not I don't know, because मैंने कभी उसको open नहीं देखा है, but Pepperfry is written over the boot. ठीक है. 2018 में पहले तो ये सिर्फ प्रोडक्ट को बेचते थे, प्रोडक्ट को सेल करते थे. लाइक इफ यू आर परचेजिंग सोफा, यू जस्ट नीड टू पे 25 or 30K and the ownership will be transferred to you. ठीक है. बट लेटर ऑन इन 2018 दे बेसिकली एक आइडिया स्ट्राइक किया, और वो आइडिया क्या था कि लाइक Pepperfry स्टार्ट गिविंग अ रेंटल सर्विसेज फॉर द फर्नीचर. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सो मेनी पीपल्स आर मूविंग हियर एंड देयर फॉर द जॉब्स एंड ऑल. आप लोगों ने देखा होगा, कभी कोई बैंगलोर रहता है, IT पर्सन का एग्जांपल ले लो, कभी वो पर्सन बैंगलोर में है, उसको ज्यादा पैकेज मिल गया तो दैट पर्सन शिफ्टेड टू हैदराबाद, और उससे भी ज्यादा मिल गया दैट पर्सन शिफ्टेड टू दिल्ली. So the people are shifting here and there, basically youth. तो हर जगह पे आप फर्नीचर को परचेज नहीं कर सकते. That is the truth. सही बात है ना.
फर्नीचर को हर जगह तो खरीदते थे। So they basically started this furniture rental services in 2018 in September. And where they launched, कहाँ पर इन्होंने इसकी शुरुआत की? So let me tell you, they started it in a very bigger cities, and those cities where there are majority of the people who are doing job, and जो बाहर से लोग आते हैं रहने के लिए, जैसे आप एग्जाम्पल में देख लो मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, गुड़गांव इज नाउ गुरुग्राम, ठीक है, हैदराबाद, पुणे, Chennai, Noida, and Ahmedabad. So these are the hub of those people who are living, whose hometown is in another place, and they are living there for the job. तो इन सारी जगह पे उन्होंने अपने रेंटल सर्विसेज को, फर्नीचर के रेंटल सर्विसेज को स्टार्ट किया। उसके बाद जब इन्होंने ये चीज शुरू किया, उस समय ऑलरेडी मार्केट में 2 कंपनीज थी जो कि कॉम्पिटिटर्स थी आपके पेपरफ्राई के लिए, ठीक है। So कौन कौन सी कंपनी थी? That is Furlenso and the second one is Instamozo. So these 2 companies are already there in a market में already थी, और इनके पास लायन शेयर्स का मतलब इनके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स था रेंटल सर्विस के लिए, ठीक है। और इनका जो सर्विस था वो किसको टारगेट कर रहा था, जो मैंने बता भी दिया, यूथ एंड द वर्किंग पीपल, और एज ग्रुप क्या था, वही 25 to 35 ईयर्स के बीच के लोगों को ये फोकस कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा ये कितने महीने के लिए रेंटल, इनके पास 12,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल था रेंटल के लिए, और ये ड्यूरेशन क्या था इनका ये रेंटल सर्विस में देने का के लिए, ये लगभग 6 months, 9 months, 12 months, ठीक है। और 2018 में दे ऑल्सो टाइड अप विद द क्विकर प्लेटफॉर्म। आप लोगों ने क्विकर प्लेटफॉर्म के बारे में सुना है? यस मैम, सुना है ना। तो क्विकर के साथ इन्होंने अपने आप को टाई अप कर लिया। जो पेपरफ्राई था ना, दैट वाज बेसिकली वर्किंग एज अ ओमनी चैनल कैपेबिलिटीज। अब नाउ व्हाट डज इट मीन, ओमनी चैनल कैपेबिलिटीज क्या होता है? तो ओमनी चैनल कैपेबिलिटी मतलब जैसे आपका ई कॉमर्स साइट है, ऑल द टाइम अवेलेबल, ऑल द टाइम यू कैन प्लेस द ऑर्डर, ऑल द टाइम, मतलब ये सिचुएशन, इस टाइप की जो फैसिलिटी होती है, दैट इज ओमनी चैनल कैपेबिलिटी। तो कहीं से भी कंज्यूमर ऑर्डर कर सकते थे, किसी भी चैनल से, ठीक है, और डिवाइस से। और यहाँ पर आपका जो ओवरऑल मतलब परचेजिंग था, मतलब ये जो पेपरफ्राई है आपको डिलीवर कर देगा प्रोडक्ट। अब यहाँ के जो 2 फाउंडर्स हैं, पेपरफ्राई के 2 फाउंडर्स हैं आपके, ये अम्बरीश मूर्ति और आशीष शाह, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो आपके जो अम्बरीश मूर्ति है, ये पेपरफ्राई के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और इन्होंने ग्रेजुएशन किया, MBA ग्रेजुएट है ये कहाँ से? IIM कैलकाटा से। और इन्होंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया, जैसे आप देख सकते हैं कैडबरी, ICICI प्रूडेंशियल, ब्रिटानिया। अम्बरीश जो थे ये कंट्री मैनेजर भी रहे हैं eBay इंडिया के, फिलिपींस के, और द फिलिपिन और इसके मलेशिया के, ठीक है। और ये चेयरमैन भी रहे किसके? IAMAI का। IAMAI क्या है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आशीष शाह जो है, ही इज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पेपरफ्राई के हैं, और इन्होंने मटेरियल मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ाई किया? IMT से, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद से इन्होंने एडवांस डिप्लोमा किया है मटेरियल में। और इनके पास डिग्री है केमिकल इंजीनियरिंग की, इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से। और आशीष, ही स्टार्टेड हिज करियर बाय ज्वाइनिंग द ट्रेडॉक्स पिगमेंट एंड केमिकल्स एज अ ब्रांच सेल्स मैनेजर इन 1998। तो इस तरीके से दोनों ने मतलब eBay में काम किया, और eBay के थ्रू ही ये दोनों की जान पहचान हुई, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड द बिजनेस। पेपरफ्राई का जो पेरेंट कंपनी है दैट इज ट्रेंड सूत्रा प्लेटफॉर्म, और ये एक पेरेंट कंपनी है आपके पेपरफ्राई का, याद रखिएगा, ट्रेंड सूत्रा प्लेटफॉर्म सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। एंड ये जो है ये क्या करती है? तो दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द लाइफस्टाइल प्रोडक्ट लाइक ज्वेलरी, क्लोथिंग, पर्सनल केयर आइटम्स इन डिस्काउंटेड रेट। ओके, So what is the meaning of पेपरफ्राई, टैगलाइन एंड लोगो? अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगा पेपरफ्राई का नाम सुनते के साथ ये रेस्टोरेंट होगा? कितने लोगों को लगा when you all heard about this name पेपरफ्राई, कितने लोगों को लगा कि this is basically a restaurant? Yes, obviously. Why this happened? Let me tell you, because of the word they use pepper. So pepper जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गोलकी या काली मिर्च, ठीक है। So they use this name pepper for basically for Indian touch. यानी कि हम लोग इंडिया में कैसे हैं, like we are totally based on the मसाला, ठीक है। तो हमें मसाला जो है उसकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा होती है, and we always use
जैसे कि काली मिर्च है ना, दैट इज वी यूज इट विद घी व्हेन हमें कुछ जुकाम और सर्दी हो जाती है। तो पेपर इज समथिंग जो हम लोग चाय में डालकर भी पीते हैं, घी में, एंड फॉर मैक्रोनी एंड अदर्स आइटम। सो पेपर इज समथिंग जो हर एक घर में आपके अवेलेबल है और हर एक लोग जिसको जानते हैं। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक इंडियन टच देने के लिए दे यूज दिस पेपर, एंड बाद में इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दे यूज दिस फ्राई। सो ऑल्दो द नेम जो है वो रेस्टोरेंट और फूड स्टार्टअप लगता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मतलब बताया कि पेपर फ्राई जो है उन्होंने सिर्फ एक डिफरेंट नाम और एक इंडियन टच के लिए दे यूज दिस नेम। और पेपर फ्राई ने एक बहुत अच्छा टैगलाइन यूज किया, लाइक हम लोग कैसे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, सो दे आर यूजिंग हैप्पी फर्नीचर टू यू, ठीक है। सो दिस इज अ टैगलाइन विच पेपर फ्राई इज यूजिंग। नो डाउट every startup have some their own story, they have their own story। हर एक की कहानी होती है, कोई भी इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं बनता है, सही बात है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बहुत सारे हिंड्रेंसेस को टैकल करना पड़ता है, फिर आगे चलकर हम एक सक्सेसफुल बिजनेस बनते हैं। तो पेपर फ्राई ने भी ये प्रॉब्लम को फेस किया। तो सबसे पहला प्रॉब्लम इनके साथ ये था कि आपका जो पेपर फ्राई है वो फर्नीचर के साथ डील करता है। सो दे आर नॉट सेलिंग अ पिज्जा, वो पिज्जा तो सेल कर नहीं रहे हैं कि आपके कार्टून बॉक्स में डाला और किसी भी इंडिविजुअल ने आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डोमिनोज में अगर हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो एक ही पर्सन आके हमें डिलीवर कर जाता पिज्जा, बट द सेम कन्वीनियंस और सेम फैसिलिटी इज नॉट देयर विद व्हेन यू आर डीलिंग विद अ फर्नीचर, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपका आया। What problem came? Let me tell you what happened कि इन्होंने डिलीवरी के लिए थर्ड पार्टी को हायर किया। They hired a third party कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है उसको तुम डिलीवर कर देना, ठीक है। लेकिन दैट थर्ड पार्टी, उन्होंने कई बार ऐसा क्या क्या किया मैं बताती हूँ। थर्ड पार्टी जो था उन्होंने उनके प्रोडक्ट को लॉबी में ही छोड़ दिया क्योंकि वो एलिवेटर में नहीं आ रहा था। सोचो, किसी को डिलीवर करना है, किसी कंज्यूमर को हमें डिलीवर करना है, एंड द थर्ड पार्टी इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिलीवरिंग दैट प्रोडक्ट बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज नॉट बोल सकते हैं ना कि वो आपके एलिवेटर में नहीं आ रहा था, दैट वाज नॉट एडजस्टेड इन एलिवेटर। सो बेसिकली अबेंडन, उनको एकदम वहीं पर छोड़ दिया उस प्रोडक्ट को। तो दिस हैपेंड। अब ये कहीं ना कहीं उनके न्यू स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की चीज थी, क्योंकि कंज्यूमर्स का ट्रस्ट आप कैसे गेन करोगे जब आप उनको टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहे। ये प्रॉब्लम उनके साथ कई बार हुआ और थर्ड पार्टी वेंडर्स ने उनके लिए बहुत ही पैथेटिक था उनके लिए थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ डील करना। तो बाद में उन्होंने थर्ड पार्टी जो था उसको इन्होंने थर्ड पार्टी को का सिस्टम को इन्होंने बिल्कुल ही हटा दिया, खत्म कर दिया। And they basically they begin with its own in-house logistics service, और इन्होंने अपना खुद का लॉजिस्टिक सर्विस जो है वो शुरू किया, और इससे उनको बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि उनका प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर होना शुरू हो गया। और आशीष जो है वो कहते भी है कि पेपर फ्राई का जो डैमेज रेट है ना वो 2% पे आ गया है। अगर हम बात करें नॉर्मल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल एवरेज की बात करें तो लगभग 6%, ठीक है, क्योंकि बड़ा प्रोडक्ट है, हेवी प्रोडक्ट है, तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू डिलीवर इट टू योर हाउस, टू योर होम स्टे, राइट। पेपर फ्राई के कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं अगर मैं बात करूं तो इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स है लोकल कारपेंटर्स। दैट इज द ट्रुथ कि जो लोकली आप आज भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग लोकल प्रोडक्ट फर्नीचर को प्रेफर करते हैं कंपैरिजन टू द ब्रांडेड फर्नीचर। सही बात है ना, सही बात है कि नहीं? यस मैम, क्योंकि वो कस्टमाइज करवा पाते हैं लोकल वाले को, कस्टमाइज करा पाते हैं, दे आर एबल टू सी द होल प्रोसेस समटाइम दैट किस तरीके से बनाया जा रहा है ना। यस मैम। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। और अगर हम इसकी बात करें पेपर फ्राई की फर्नीचर सेगमेंट में कौन कौन कॉम्पिटिटर है, तो देयर इज होमलेन, so there is a Homeland, Urban Ladder, Go Roots, Leave Space. So these are the competitors for the furniture segment. If I am talking about the
रेंटल सर्विसेज में, क्योंकि रेंट पर भी अपने फर्नीचर को देते हैं, तो हु आर द कॉम्पिटिटर्स? तो Furlenso, Rentical, Rentmozo, Grab on Rent, City Furnish, so these are some furniture renting platform. ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में भी IKEA जो है that also came in the retail आपके फर्नीचर के लिए, and it started operating from 2018. रेवेन्यू मॉडल इनका क्या है? तो ये क्या करते हैं मैं बताती हूँ। ये पेपरफ्राई जो है ना, दैट इज बेसिकली वर्किंग एज अ प्लेटफॉर्म, जैसे आपका Amazon, फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। दे आर ऑल्सो वर्किंग इन दैट वे। दे हैव सो मेनी मर्चेंट्स, बहुत सारे आर्टिशियंस और मर्चेंट्स इनके पास, स्मॉल और मीडियम, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पेपरफ्राई की कैटेगरी टीम है, वो जाती है वहां मर्चेंट के पास और वो प्रोडक्ट्स को देखती है, क्वालिटी टेस्ट करती है। अगर अच्छी क्वालिटी है तो दे बेसिकली स्टार्टेड, they want to sell that product। and वो क्या करते हैं, एक बार आपके मर्चेंट के साथ डील हो गया कि भाई आप प्रोडक्ट को मेरे सेल कीजिए, क्योंकि आप अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं। एक बार जब ऑर्डर प्लेस कर दिया वो, और उसके बाद क्या होता है ये बता देती हूँ। फिर उसके बाद ना उसके पिक्चर्स लिए जाते हैं, क्योंकि उसको डालना होता है पेपरफ्राई के वेबसाइट पे। सो फर्नीचर चेक कर लिया, क्वालिटी देख लिया, उसके बाद फिर उसका पिक्चर लिया, उस पिक्चर को वेबसाइट पे डाला, ठीक है, एप्लीकेशन पे डाला। अब वहां पर ऑर्डर प्लेस करते हैं कौन? हमारे कंज्यूमर। तो वंस द ऑर्डर इज प्लेस, जब फिर वो जो आपका फर्नीचर है ना, वो आपका वेयर हाउस, पेपरफ्राई के वेयर हाउस में पहुंच जाता है। वेयर हाउस में आने के बाद यहाँ पर फिर से इसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सही है नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी फाइन है, फिर वहां से उसको घर तक डिलीवर किया जाता है। तो समझ में आया हाउ दिस बिजनेस मॉडल इज वर्किंग? क्लियर हुआ सबको? समझ में आया किस तरीके से इसने काम किया? सो दे हैव अ मर्चेंट, हाँ, दे हैव लोकल मर्चेंट्स, एंड व्हाट बेसिकली दे आर डूइंग, ये क्या करते हैं कि ये आपके मर्चेंट से मतलब प्रोडक्ट को डील कर लेते हैं, फोटोज डाल देते हैं, फिर उस फोटो के थ्रू जो इनके पास ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर जो है इनके मर्चेंट के पास पहुंचता है। मर्चेंट्स जो है वो अपने उस प्रोडक्ट को जो सेल हो गया उसको इनके वेयर हाउस में पहुंचाते हैं, फिर यहाँ के वेयर हाउस से फिर वो कंज्यूमर तक जाता है। तो दिस इज द बिजनेस मॉडल विच पेपरफ्राई इज यूजिंग, ठीक है। और मर्चेंट के लिए पेमेंट, मान लीजिए सोफा है दैट इज फॉर 20,000, और अगर वो 25,000 में सेल हो रहा है, दैट 5,000 इज द मार्जिन फॉर पेपरफ्राई। क्लियर हो गया? समझ में आया? और दे हैव मोर देन 10,000 प्लस मर्चेंट पार्टनर, और ये इंडिया के बाहर भी डिलीवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द अवार्ड। सो पेपरफ्राई जो है, पेपरफ्राई जो है अभी 2014 में द कंपनी हैज स्टिल दे डिलीवर्ड प्रोडक्ट इन मोर देन 500 सिटीज। 500 से ज्यादा सिटी में अभी तक पेपरफ्राई ने अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया है। जस्ट इमेजिन हाउ इट्स वर्किंग। पेपरफ्राई के अवार्ड की अगर हम बात करें तो पेपरफ्राई जो है 2012 में रेड हेरिंग एशिया टॉप 100 में इसको अवार्ड मिला। फिर इसको प्योरली ई रिटेलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। फिर इसने जो ये टैगलाइन यूज किया था, हैप्पी फर्नीचर टू यू, दिस इनोवेटिव टैगलाइन के लिए भी इसको अवार्ड मिला। क्रिएटिव अंडर द कैटेगरी ऑफ रिटेल एडवर्टाइजिंग फॉर इट्स आउटडोर कैंपेन। So this is how the Pepperfry started working. In the last class, I asked that, do you know what is the meaning of paper? So many students said that, ma'am, paper वही ना कागज। So don't confuse yourself with this term. Pepper here, it means that Kali Mirch, Pepperfry. So how many partners they have? Pepperfry ने अभी हाल फिलहाल में Zeppo के साथ अपना Pepperfry को टाई अप किया है। दे हैव सम प्रिविलेज प्रोग्राम, एंड पेपरफ्राई ने पार्टनरशिप किया था राजस्थान रॉयल्स के साथ भी फॉर IPL इन 2015 फॉर प्रमोटिंग देयर ब्रांड नेम। ओके, एंड इट्स ग्रोथ रेट इज वेरी हाई। फ्यूचर प्लान्स, दे आर बेसिकली मूविंग टुवर्ड ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब होम में और मेक डिसीजन के लिए ये वो काम करना चाह रहे हैं। सो आई गेस दिस होल स्टोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, how Pepperfry was started and how it started working. Yes ma'am, आप clear है? Clear हो गया? अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि Pepperfry जो है वो क्यों सक्सेसफुल है? कोई बताएगा मुझे why? Raise your hand. Can anyone tell me that why Pepperfry is one of the advantages? क्यों है ये?
एडवांटेजेस क्यों है ये? कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाई इट इज बेसिकली गेटिंग बेनिफिट? कोई बताएगा मुझे क्यों है ये, क्यों ये फायदा हो रहा है इसको, और क्यों ये आगे चल के ग्रोथ के चांसेस हैं इसकी? यस स्वर्णिका, यस स्वर्णिका। स्वर्णिका आई गेस आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो, आई गेस देयर इज सम प्रॉब्लम, सो आई अंडरस्टैंड। मैंने वही कहा आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे होंगे। कोई और भी बच्चा बता दो मुझे, एनीवन एल्स? आकांक्षा, माही, कल्पना, राजीव, युवराज, विनीत, कौन बताएगा क्यों लगता है कि प्रॉफिटेबल होगा आगे? क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बेच रहा है और रेंटल बेसिस पे बेच रहा है। यस ऑब्वियसली, मतलब क्या आपको क्या लगता है कि क्या इसकी स्ट्रैटेजी है जो इसको आगे चल के प्रॉफिट देगी? नो आइडिया मैम। बेसिकली द मॉडर्न, इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रैटेजी है ना, दैट इज अबाउट दैट दे आर सेलिंग मॉडर्न फर्नीचर, दे आर नॉट सेलिंग ट्रेडिशनल वन। सेकेंड थिंग दैट दे हैव अ रेंटल सर्विस, दैट इज द ट्रुथ कि रेंटल सर्विस भी इनके लिए बेनिफिशियल है। थर्ड में कि ये आपको इकोनॉमिकल प्राइस पे और घर तक डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। एंड पेपरफ्राई इज नाउ अ ब्रांड, so there is a brand loyalty which is helping them for increasing the number of customers, ठीक है। नेक्स्ट एक और इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पेपरफ्राई है ना, वो आपके मर्चेंट और स्मॉल जो आपके बिजनेस, स्मॉल अनऑर्गेनाइज्ड कारपेंटर्स हैं, उनको ये काम भी दे रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है दैट दे आर बेसिकली engaging the carpenters for making the product for the Paperfry, and through Paperfry those merchants are able to sell their product because Paperfry is basically providing a platform, right? So this is the reason. And एक और भी चीज है that they have a studio, so you are able to imagine कि अगर ये सोफा परचेज करते तो आपके घर पे कैसा लगेगा। तो suitability you are able to take the realistic approach because they are working with the realistic approach, that is something which is helping you to purchase the product from Paperfry. सही बात है या नहीं? You all are able to understand the words. So because of this thing, the chances of the Paperfry कि वो प्रॉफिट और भी ज्यादा अर्न करेगा, पहले तो उसका ब्रांड रॉयल्टी बढ़ चुका है, लॉयल्टी। और एक और चीज, बिकॉज ऑफ द कोविड पीरियड नाउ द पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अ लॉट, यानी लगभग 40 से 45% वो लोग बढ़ गए हैं जो पहले कभी भी कोई ऑनलाइन मटेरियल प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे। सो एक हैबिट जो लोगों की चेंज हुई है, जो कंज्यूमर में एक ट्रेंड आया है दैट दे वांट टू परचेज एवरीथिंग ऑनलाइन बिकॉज दे विल गेट इट विद अ कन्वीनियंट वे, और उसके अलावा रिटर्निंग पॉलिसी इतनी इजी है, सब कुछ इतना बेटर है, तो पीपल आर नाउ बेसिकली गिविंग प्रेफरेंस टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो वन, this is also one of the factor, but no doubt the Flipkart, Amazon and the other type of the furniture segments are the competitor of Paperfry, but hope so that it will be in the beneficial stage because of some distinct feature whatever they are providing to their consumers. So for today's class, I guess all these points are clear to all of you. आज के क्लास के लिए ये सब समझ में आ गया? All these points are clear to all of you, whatever we studied in this class. Clear है सबको? Yes ma'am. Okay, so in the next class we will come, I'll come with the new story, and I just want to tell you that please see Shark Tank, because I am not promoting that brand, but I am saying it because that is going to tell you that what kind of ideas there in India and how many entrepreneurs are coming from the various part of India, and what is the way of valuation your company, and you will able to get the new words from that place. Like आज का जो टॉपिक था वैल्यूएशन के ऊपर, तो वैल्यूएशन पता है क्या होता है? वैल्यूएशन इज समथिंग लाइक व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू आर पुटिंग फॉर योर कंपनी। जैसे एग्जांपल में, अगर आपने इस महीने 5 लाख कमाया, तो हो सकता है कि आप अपनी कंपनी को 50 करोड़ बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो दैट वैल्यूएशन इज 50 करोड़, ठीक है।
So valuation, that what is overall what value आपके पूरे overall company का होगा आगे चल करके, so that is a valuation like 2 crore, 3 crore, 8 crore like this. ठीक है? So I guess this point is clear to all of this point is clear to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So see you all in the next class.